السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتی ہوں کہ سب ٹھیک ہوں گے۔ سٹوری سنانے سے پہلے ایک ریکویسٹ کہ چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ اس کہانی کا آغاز آج سے 20 سال پہلے ہوا، جب ڈیرہ غازی خان کے ایک قصبے میں اکبر نے ایک گھر خریدا تھا۔ گھر نہیں بلکہ ایک کھنڈر خریدا تھا۔ ایک کچا کمرہ تھا جس کی 4 دیواری بھی کچی تھی۔ گھر کی ایک سائڈ قبرستان تھا۔ گھر اور قبرستان کے بیچ میں بس ایک 7 فٹ کی گلی تھی۔ اکبر کو لوگوں نے منع بھی کیا تھا، یہ گھر مت خریدو کیونکہ اس گھر میں جنات کا بسیرا ہے، اور اس گھر کا پہلا مالک اسی گھر میں پراسرار طور پر مردہ پایا گیا تھا۔ علاقے کے پرانے رہائشیوں کا کہنا ہے کہ کسی زمانے میں یہ گھر قبرستان کا حصہ ہوا کرتا تھا، جسے بعد میں ایک گھر بنا دیا گیا، مگر اکبر نے کسی کی ایک نہ سنی اور وہ گھر خرید لیا۔ پرانے گھر کو توڑوا کر ایک خوبصورت گھر بنوا لیا۔ اکبر کے گھر کی بناوٹ کچھ اس انداز کی تھی کہ ایک کمرہ تکون کی شکل تھا، یعنی ایک بڑے کمرے کے 3 کونے تھے، جبکہ باقی 2 کمرے عام کمروں کی طرح تھے۔ اصل میں یہ تکونی کمرہ وہی جگہ تھی جہاں پہلے پرانے مالک مکان کا انتقال ہوا تھا۔ اکبر ایک جیدار بندہ تھا۔ اکبر اور اس کی بیوی بچے اس گھر میں 5 سال تک رہائش پذیر رہے۔ اس گھر میں ان کے ساتھ کیا معاملات پیش آئے، انہوں نے آج تک کسی سے اس بات کا ذکر نہیں کیا، لیکن ان کا وقت اچھا گزر رہا تھا کہ ایک دن اچانک رات کو 12 بجے کے قریب اکبر کی طبیعت خراب ہو گئی۔ دل کی دھڑکن بند ہونے لگی، منہ سے جھاگ آنے لگا اور پھر اکبر اپنے ہی گھر میں وفات پا گیا۔ اس وقت اکبر کی عمر 35 یا 40 سال کے لگ بھگ ہوگی۔ اکبر ایک پڑھا لکھا اور بہت اچھا آدمی تھا۔ اس کی صحت بھی بہت اچھی تھی۔ نوٹ کرنے والی بات یہ تھی کہ اکبر کی موت بھی اسی تکونی کمرے میں واقع ہوئی تھی جس میں پہلے مالک مکان کی موت ہوئی تھی۔ اب تو اکبر کے خاندان والوں اور ارد گرد کے ہمسایوں کا شک یقین میں بدل گیا کہ اس گھر میں، خاص کر اس تکونی کمرے میں، کوئی غیر معمولی بات ضرور ہے۔ اکبر کی وفات کے بعد اس کی بیوی بچوں نے وہ گھر چھوڑ دیا۔ گھر چھوڑنے کی وجہ یہ تھی کہ اکبر کی بیوی کی جہاں نوکری تھی وہ علاقہ اس گھر سے کافی دور تھا، اس لیے انہوں نے نیا گھر بنا لیا اور وہاں شفٹ ہو گئے۔ پرانا گھر کم و بیش 15 سال تک بند رہا۔ 15 سال بعد اکبر کا بڑا بیٹا، جس کی شادی کافی سال پہلے ہو چکی تھی، اس کا نام علی تھا، علی اور اس کی بیوی بچے اس گھر میں شفٹ ہو گئے، جبکہ اکبر کے باقی بہن بھائی اور ماں نئے گھر میں ہی رہائش پذیر رہے۔ علی اپنے شہر سے دور نوکری کرتا تھا، اس لیے 2 یا 3 ماہ بعد ہی گھر آتا تھا۔ علی کی بیوی کا نام سلمہ تھا۔ میں آپ لوگوں کو بتاتی چلوں کہ جس دن 15 سال بعد پہلی مرتبہ گھر کا دروازہ کھولا گیا تو اکبر کا بڑا بیٹا علی اس وقت اپنی جاب پر تھا۔ حالات ہی کچھ ایسے تھے کہ علی کی بیوی اکیلی اپنے 4 بچوں کے ساتھ اس گھر میں رہنے آئی تھی۔ بچوں کی عمر 2 سال، 5 سال، 7 سال اور 10 سال کی تھی۔ سلمہ نے ایک بات اور نوٹس کی کہ گھر میں عجیب سی ویرانی تھی، لیکن اب رہنا تو یہی تھا۔ چنانچہ اس نے اس گھر میں کمروں کے تالے کھولنا شروع کیے، لیکن جب اس تکونی کمرے کا دروازہ کھولا تو وہاں عجیب ہی منظر تھا۔ دروازے کے بالکل سامنے کمرے کے اندر ایک بہت بڑی چھپکلی بیٹھی ہوئی تھی۔ اس چھپکلی کا سائز عام چھپکلی سے 4 گنا زیادہ بڑا تھا۔ جی، یہ چھپکلی ہی تھی، عام چھپکلی جو گھروں میں پائی جاتی ہیں، لیکن سائز میں اتنی بڑی کہ کسی کو بھی حیرت میں ڈال دے۔ سلمہ نے ڈر کے مارے کمرے کا دروازہ واپس بند کر دیا اور کچھ دیر بعد کھولا تو وہ چھپکلی کمرے میں نہیں تھی۔ خیر، جیسے تیسے سامان شفٹ کر دیا گیا اور دن گزرنے لگے، مگر وہ چھپکلی بھی اکثر گھر میں ہی نظر آ جایا کرتی تھی۔ پھر آہستہ آہستہ یہ معمول کی بات ہو گئی۔ سلمہ کو گھر میں کچھ غیر معمولی حرکات واضح محسوس ہونے لگی تھی، مگر اس نے وہم سمجھ کر ٹال دیا کیونکہ اب رہنا تو اس گھر میں ہی تھا۔ کچھ دن بعد جب علی جاب سے واپس آیا تو اس نے گھر کی مرمت کرائی اور کچھ دن گھر رہ کر واپس چلا گیا۔ سلمہ نے بازار سے پھولوں کے بہت سارے پودے خریدے اور گھر میں لگا دیے۔ ان پودوں میں ایک پودا رات کی رانی کا تھا، اس پر رات کے وقت پھول کھلتے تھے۔ آپ لوگ اس پودے کو یاد رکھنا، اس کا تعلق بھی اسی کہانی سے ہے۔ اب سلمہ کو اس گھر میں رہتے ہوئے 1 مہینہ ہو چکا تھا اور حالات مزید خراب ہوتے جا رہے تھے۔
अक्सर औकात घर में किसी के कुछ बुड़बुड़ाने की आवाज़ आने लगी थी। फिर आहिस्ता आहिस्ता आवाज़ें जुमले सुनाई देने लगे। ये जुमला इस तिकोनी कमरे से सुनाई देते थे। फिर इसे कुछ साए इस घर में नज़र आने लगे। इसके बाद इसे मालूम हुआ कि इस घर में जन्नात की पूरी फैमिली आबाद है। जन्नात की फैमिली में टोटल 5 अफराद के लोग थे। एक खाविद, इसकी 2 बीवियाँ और 2 बच्चे। ये जन्नात ईसाई मज़हब के थे। बीवी बहुत ही गुस्से वाली और मर्द मिजाज थी। ये जन्नात सलमा को इंसानी रूप में नज़र आते थे, बिल्कुल इंसान जैसे थे। सलमा के मुताबिक ये फैमिली इसी तिकोनी कमरे में रिहाइश पजीर थी। कमरे में एक चारपाई भी पड़ी रहती थी और इसके अलावा भी कुछ सामान और कमरे में मौजूद था। सलमा जब भी किसी काम से इस कमरे में जाती थी, जिन गुस्सा करते और इसे डांटते कि तुम लोग इस कमरे में क्यों आते हो, ये हमारा घर है, यहाँ से चले जाओ वरना नुकसान उठाओगे। सलमा को अब इनकी आदत सी हो गई थी। वो समझती थी कि ये जिन ऐसे ही धमकियाँ देते रहेंगे, लेकिन इसे मालूम ही ना था कि अब कुछ बहुत बुरा होने वाला है। इस घर में रहते हुए सलमा को 2 से 3 महीने हो चुके थे। एक दिन इसने ये बात नोट की कि इसका छोटा बेटा, जिसकी उम्र 2.5 या 3 साल थी, हर वक्त तिकोनी कमरे में बैठा खेलता रहता था। इसने अपने छोटे बेटे को मना किया कि इस कमरे में मत खेला करो, लेकिन इसको मालूम है कि बच्चे किसी की बात नहीं सुनते, बस अपने दिल की करते हैं। कुछ दिन बाद सलमा के छोटे बेटे की तबीयत बहुत ख़राब रहने लगी। वो समझी शायद मामूल का बुखार है और ठीक हो जाएगा, लेकिन बहुत इलाज करने के बावजूद ही बच्चा ठीक नहीं हो रहा था। आखिरकार सलमा ने अपनी बहन से बात की और इसे सारे मामले के बारे में बताया। सलमा की बहन एक दीनदार औरत थी। इसने सलमा को कहा कि तुम एक काम करो और जिनों के साथ मुआहदा कर लो, फिर सब कुछ ठीक हो जाएगा। इसने सलमा को कहा कि तुम जिनों से बात करो और उन्हें कहो कि तुम हमें तंग ना करना, हम तुम्हें तंग नहीं करेंगे। लेकिन सलमा ने बिल्कुल ऐसा ही किया और जिनों को कहा कि हमारी मजबूरी है इस घर में रहना, मेरे पास कोई और दूसरा ठिकाना नहीं है, इसलिए हम इस घर में रहने पर मजबूर हैं। अगर आपने इस घर में रहना है तो शौक़ से रहिए, हम आपको तंग नहीं करेंगे और आप हमें तंग मत कीजिए। मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, मैं इन्हें लेकर कहाँ जाऊँगी। आप इस घर में किसी एक कमरे में रह लें, हम वहाँ नहीं जाएंगे और आप बाकी घर में मत आना। जिन्होंने सलमा की बात मान ली और इसे कहा कि ठीक है, बस इस बड़े कमरे में मत आया करो, बाकी पूरे घर तुम्हारा है, जहाँ तुमने रहना है रहो, अब हमें तंग नहीं करेंगे। सलमा ने इस सारे वाक़े से बहन को आगाह किया। सलमा की बहन ने कहा कि तुम मेरे पास आ जाओ, हम इसका रूहानी इलाज कराते हैं। सलमा अपने बच्चे को लेकर अपनी बहन के घर चली गई। एक मौलवी साहब ने बच्चे का इलाज शुरू किया और कहा कि इसका इलाज 40 दिन तक जारी रहेगा, इसके बाद बच्चा ठीक हो जाएगा और जन्नात भी घर से निकल जाएंगे। सलमा अपने घर वापस आ गई और मौलवी साहब का बताया हुआ वजीफ़ा पढ़ना शुरू कर दिया। इसके अलावा नमाज़ें और कुरान पाक की तिलावत भी शुरू कर दी। दम किया हुआ पानी घर में छिड़कने लगी। जब सलमा घर में कुरान पाक पढ़ना शुरू करती तो जन्नात इसे मना करते और कहते कि ये मत पढ़ो वरना तुम बहुत पछताओगी। कुछ दिन तक यही सिलसिला जारी रहा। फिर सलमा कुछ दिन के लिए अपने रिश्तेदारों के घर रहने चली गई। वहाँ इसने अपनी बेटी को 2 गुड़ियाँ ख़रीद कर दीं। 5 दिन शहर रहने के बाद जब वो घर वापस आई तो ये मगरिब का वक्त था। घर पहुँचते ही सलमा ने अपनी बेटी से कहा कि बेटा, मैंने सुना है कि गुड़ियों में जन्नात आ जाते हैं, इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम ये गुड़िया दूर फेंक आओ, घर में मत रखो, क्योंकि तुम काफ़ी दिन इनसे खेल चुकी हो। बेटी ने माँ की बात मान ली और इसी वक्त दोनों गुड़िया को घर से बहुत दूर नहर के किनारे गंदगी के ढेर पर फेंक आई। सलमा की बेटी की उम्र 10 साल है। ये माह रमज़ान के दिन थे, यही रमज़ान जो अभी गुज़रा है। अगले दिन सुबह सहरी के वक्त सलमा ने अपनी बेटी को जगाया और इसे कहा कि आओ मेरे साथ किचन में काम कराओ। बेटी उठी और कमरे का दरवाज़ा खोल दिया, जो कि सहन में खुलता था। जैसे ही बेटी ने कमरे का दरवाज़ा खोला, सलमा की नज़र दरवाज़े पर पड़ी। दरवाज़े के बाहर वही बड़ी छिपकली चिपकी हुई थी। छिपकली को देखकर सलमा समझ गई कि अगर मेरी बेटी की नज़र इस पर पड़ गई तो वो डर जाएगी। लेकिन सलमा की बेटी ने दरवाजे पर छिपकली को नहीं देखा। दरवाज़ा खोलते ही बेटी की नज़र सामने मौजूद गुड़िया पर पड़ी, वही गुड़िया जो कि शाम वो दूर फेंक आई थी। बच्ची ने जैसे ही गुड़िया को घर में मौजूद देखा, वो हक्की बक्की रह गई। फ़ौरन बिस्तर पर भागकर चढ़ गई और माँ को बताया कि अम्मी, ये गुड़िया तो मैं दूर फेंक आई थी, ये वापस कैसे आ गई।
माँ बेटी दोनों बहुत डरे हुए थे। वो दोनों बिस्तर पर ही बैठी रहीं। इस दिन उन्होंने रोज़ा भी नहीं रखा। छिपकली और गुड़िया को एक साथ देखकर सलमा समझ चुकी थी कि ये जन्नात का काम है। वही इस गुड़िया को वापस घर लाए हैं। सुबह के वक्त जब दिन निकल आया था, सलमा घर के कामों में मसरूफ़ हो गई, लेकिन अचानक इसकी नज़र घर में मौजूद इकलौते दरख्त पर पड़ी। ये सरसों का दरख्त था। इसने देखा कि दूसरी गुड़िया दरख्त की शाखों पर अजीब तरह से उल्टी लटकी हुई थी और बहुत डरावनी लग रही थी। सलमा को बहुत गुस्सा आया। सलमा ने सारी बात अपने खाविंद को फ़ोन पर बताई। सलमा के शौहर ने इससे कहा कि तुम लोगों के साथ कोई शरारत कर रहा है और डराने की कोशिश कर रहा है, लेकिन सलमा को तो मालूम था कि ये किसका काम है, क्योंकि अपने रिश्तेदारों के घर से जब वो मगरिब के वक्त गाँव वापस आए थे और किसी ने भी ये गुड़िया इनके घर में नहीं देखी थी सिवाय जन्नात के। इसलिए इस वक्त उसने अपनी बेटी को कहा कि ये गुड़िया कहीं दूर फेंक आओ, और वो फेंक भी आई थी। कुछ दिन बाद सलमा रात के वक्त अपने रूम में लेटी हुई थी। ये कोई रात के 10 बजे का वक्त होगा। बाहर सहन में 2 बल्ब रोशन थे। घर का सहन भी छोटा सा था, जिसकी वजह से बाहर काफ़ी रोशनी थी। अचानक सलमा की नज़र खिड़की पर पड़ी, जहाँ से सहन का मंजर साफ नज़र आ रहा था। खिड़की के बिल्कुल सामने सहन की दीवार के साथ रात की रानी का बहुत बड़ा सा पौधा था, जिसकी ऊंचाई 7 से 8 फुट थी। सलमा ने देखा कि एक बहुत ही नूरानी चेहरे वाला शख्स फूल के पौधे के दरमियान खड़ा है और खिड़की की तरफ आ रहा है। जब वो दरख्त में से निकला तो इसकी पीठ खिड़की की तरफ थी। फिर वो पलटा और इसका चेहरा खिड़की की तरफ हो गया। फिर वो सलमा से मुखातिब होकर कहने लगा, तुमने जिस दुकान से ये पौधा ख़रीदा था, मैं वहीं इस दुकान पर इस पौधे में रहता था। मैंने काफ़ी अर्सा तुम्हारे घर गुजारा, लेकिन किसी को तंग नहीं किया। लेकिन आजकल जो तुम ये वज़ाइफ पढ़ रही हो, वो जो पड़ा हुआ पानी मुझ पर छिड़क रही हो, मुझे इससे बहुत तकलीफ़ होती है। अब मैं तुम लोगों का घर छोड़कर जा रहा हूँ और कभी वापस नहीं आऊँगा। फिर वो शख्स खिड़की से ऊपर की तरफ उड़ा और कहीं गायब हो गया। सलमा के बकौल वो बहुत खूबसूरत नौजवान था। इसका चेहरा बहुत नूरानी था। इसने सफ़ेद रंग का सूट पहना हुआ था। जितनी देर वो शख्स खिड़की के पास रहा, सलमा की नज़रें इसी पर थीं। सलमा को ऐसे लगा जैसे इसके सामने कोई फरिश्ता खड़ा है। इस शख्स के चेहरे से नूर टपक रहा था। यकीनन वो एक नेक जिन था या शायद कोई फरिश्ता होगा। इस शख्स ने बस इतनी बात की और गायब हो गया। इसके बाद सलमा सो गई। फिर कुछ दिन बाद हालात बद से बदतर होना शुरू हो गए। एक दिन सलमा अपने बच्चों के साथ सोई हुई थी। यही रात के 12 बजे का वक्त होगा। सलमा के बेटे की तबीयत बहुत ख़राब हो गई। बच्चे को बहुत तेज़ बुखार था। काफ़ी अरसे से वो बीमार था, लेकिन आज तबीयत बहुत ही ख़राब थी। थोड़ी देर बाद बच्चे के मुंह से झाग आने लगे और बच्चा नीला हो गया। सलमा ने अपने शौहर को फ़ौरन कॉल की। रात काफ़ी होने की वजह से शायद वो गहरी नींद सो रहा था। शौहर ने कॉल अटेंड नहीं की। थोड़ी देर बाद बच्चा बेहोश हो गया। सलमा समझी कि शायद मेरा बेटा फौत हो चुका है। सलमा ने ज़ोर ज़ोर से चीखो पुकार शुरू कर दी। रोने की आवाज़ सुनकर हमसाये भी जाग गए। हमसायों में से एक बूढ़ी औरत ने दरवाज़ा खटखटा कर पूछा कि क्या हुआ है, क्यों रो रही हो। सलमा ने दरवाज़ा खोला और उसे बताया कि मेरा बेटा फौत हो चुका है। बूढ़ी औरत बड़ी चालाक थी। इसने बेटे को चेक किया और सलमा को कहा, पागल, तेरा बेटा अभी ज़िंदा है, बस तुम जल्दी करो, अभी फ़ौरन घर से निकल जाओ। मेरे घर चलो या चाहे तुम बाहर गली में खड़ी हो जाओ, लेकिन इस घर में मत रहो। फ़ौरन घर से निकलो। घर से बाहर निकलकर सलमा ने एक गाड़ी वाले को कॉल की। गाड़ी वाला घर भी करीब था। वो फ़ौरन वहाँ पहुँच गया। सलमा अपने तमाम बच्चों को लेकर 30 किलोमीटर दूर शहर के अस्पताल पहुँच गई। इस दौरान इसका खाविंद भी आ गया था और कुछ रिश्तेदारों से भी बात हो गई थी। सलमा के अस्पताल पहुँचने से पहले ही रिश्तेदार अस्पताल में मौजूद थे। बच्चे का इलाज शुरू हो गया, लेकिन हालत संभलने में नहीं आ रही थी। आखिरकार एक डॉक्टर ने सलमा को बताया कि तुम्हारे बेटे की तमाम रिपोर्ट्स ठीक हैं। हमारे मुताबिक इससे कोई भी मर्ज़ लाहक नहीं है, लेकिन मैं तुम्हें एक मशवरा दूंगा। ज़रूर मैं एक डॉक्टर हूँ, लेकिन पहले तुम बहुत से मरीज़ देख चुका हूँ जिनके तमाम टेस्ट क्लियर होते हैं और कोई भी बीमारी नहीं होती। आप मेरी बात मानें और इसे किसी मौलवी साहब के पास ले जाएं। सलमा डॉक्टर की बात समझ गई और अपने बेटे को अपने मौलवी साहब के पास ले गई, जो बच्चे का रूहानी इलाज पहले से कर रहे थे।
डॉक्टर के कहने पर सलमा अपने बेटे को मौलवी के पास ले गई। मौलवी ने दम दुरूद किया तो बच्चा बिल्कुल ठीक हो गया। जब सलमा घर वापस पहुंची तो हालात पहले से भी बदतर हो गए। अब जिनों का असर घर के तमाम अफराद पर होने लगा था। सलमा कहती है कि मेरे चारों बच्चे बीमार पड़ गए और अजीब अजीब बातें करने लगे। सबसे छोटा बेटा कहता कि मेरी नाक से खून आ रहा है और कोई मुझे मारता है, बल्कि बज़ाहिर तौर पर ऐसा कुछ नहीं था। बाकी बच्चों को भी घर में कुछ ना कुछ नज़र आ जाता था। वो बहुत डरे डरे रहते थे, अक्सर ही सब के सब बीमार रहते थे। उस सलमा पर भी जिन्नात हावी हो रहे थे। इसे भी रात को बुखार हो जाता था, तबीयत ही ख़राब होती जा रही थी। सलमा कहती कि मैं रोना चाहती तो रो भी नहीं सकती थी। रात को जिन्नात हम लोगों का मुंह ही बंद कर देते थे। ज़ोर ज़ोर से चीखना चाहती थी पर आवाज़ नहीं निकलती थी। बहुत ही ख़राब हालत थी। एक दिन सलमा ने अपने मौलवी साहब को कॉल की और उसे बताया कि हालात बहुत ख़राब होते जा रहे हैं, वजीफ़े का असर भी नहीं हो रहा, मेरे सारे बच्चे और मैं ख़ुद भी बीमार हो गई हूँ। ये सुनकर मौलवी साहब ने कहा कि मुझे लगता है कि ये जिन्नात इस घर पर पूरी तरह काबिज़ हो गए हैं। अब ये जिन्नात यहाँ से नहीं जाएंगे। अच्छा यही है कि तुम लोग ही घर छोड़ दो। ये सुनकर सलमा ने घर छोड़ने से इनकार कर दिया। अभी कुछ दिन ही गुजरे थे कि एक दिन सलमा की हमसाई इससे मिलने आई। सलमा के घर की एक दीवार इस हमसाई के घर से अटैच थी, जबकि सलमा के घर के पीछे एक और घर था। घर के सामने एक गली थी। सलमा के घर के बाएं दीवार के साथ गली थी और गली की दूसरी तरफ कब्रिस्तान की दीवार थी। मतलब कब्रिस्तान और सलमा के घर के बीच में 7 फुट का फासला था। सलमा ने घर के तमाम हालात अपने हमसाई को बताए। ये सुनकर हमसाई बोली, बेटा हमें इनसे सब बातों का इल्म बहुत पहले सालों से था। हम यहाँ के रिहायशी हैं। हमने तुम्हारे ससुर अकबर को भी मना किया था कि ये घर मत खरीदो, मगर वो नहीं माना। इसका अंजाम भी तुम लोग देख चुके हो। वो बूढ़ी हमसाई बोली, बेटा हम लोगों ने रात के वक्त तुम्हारे घर की छत पर जिन्नात को उतरते अपनी आंखों से देखा है। कभी स्याह और कभी सफ़ेद हवेले तुम लोगों की छत पर अक्सर नज़र आ जाते हैं। इस घर में वाक़या ये जिन्नात ये पूरे मोहल्ले को मालूम है। हमसाई बोली, बेटा जिस दिन तुम्हारे ससुर की मौत हुई थी इसी दिन हम लोग सबसे पहले तुम्हारे घर पहुंचे थे। तुम्हारी सास बहुत ज़ोर ज़ोर से रो रही थी और तुम्हारे ससुर के मुंह से झाग निकल रहा था। जब इस दिन रात को तुम्हारे बेटे की तबीयत भी ख़राब हुई थी, मैं तुम्हारे घर आई। मैंने फिर वही मंज़र देखा जो इस दिन तुम्हारी सास और ससुर के साथ देखा था। बिल्कुल इसी तरह तुम भी ज़ोर ज़ोर से रो रही थी। तुम्हारे बेटे के मुंह से भी वही झाग निकल रही थी। इस दिन वही 15 साल पुराना मंजर मेरी आंखों के सामने घूम गया, इसलिए मैंने तुम्हें फ़ौरन घर से बाहर निकलने को कहा था। तुम्हारी किस्मत अच्छी है कि जो तुम्हारा बेटा बच गया। हमसाई दोबारा बोलना शुरू हुई, बेटा मेरी बात मानो और अपने बच्चों की जान प्यारी है तो तुम ये घर छोड़ दो और वापस अपनी सास के साथ जाकर रहो। आज सलमा को पूरी बात समझ आ चुकी थी। सलमा ने अपने शौहर को फ़ोन किया और उसे बताया कि अब मैंने यहाँ नहीं रहना। इस दिन सलमा अपना सारा सामान उठवाकर अपनी सास के घर वापस आ गई। सलमा अपनी सास से झगड़ा कर आई थी। इसने सोचा अब मैं हमेशा ही इसी घर में रहूँगी। वापस जाकर इसने अपनी सास से अपने किए की माफ़ी मांग ली और अब इसी घर में सास के साथ रह रही है। सास के घर वापस जाकर सलमा ने अपने चारों बच्चों को रूहानी इलाज करवाया और वो सब बच्चे और वो खुद बिल्कुल ठीक हो गई। सलमा ने इस जन्नती घर में पूरे 8 माह गुजारे थे। अब भी वो जब गुजरी बातें याद करती है तो खौफ से लरस जाती है और ख़ुद को खुशनसीब समझती है कि मेरी और मेरे बच्चों की जान बच गई। तो लिसनर्स, आज ये कहानी मैंने आपको सुनाई। उम्मीद करती हूँ कि आपको पसंद आई होगी। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। जब तक के लिए इजाज़त चाहती हूँ। खुदा हाफिज़।